Hello students, welcome back. Today we are going to start chapter number 5, File Handling in Python. This is the part 1 video of this chapter. First of all, let us understand what is the meaning of file handling. It is a process by which a software handles its input-output operations with binary or text files. That is, to handle the files, a software has some input-output operation which it performs on the binary or text files. So this process is known as file handling. Now basically, what is a file? You all must have created a file at one point or some other point. Now a file is a bunch of bytes on some storage device like hard disk, etc. Whatever we write in English language or in some other language, it gets converted into the machine language and it is in the form of bits and bytes. So what is file? It is basically a bunch of bytes on some storage device. They help in storing the information permanently. Now we have data files, which we will be covering in this chapter. Basically, what are data files? These files store information related to a particular application which can be used later. Now we have two types of data files, text file and binary file. Text files you can consider which have the extension .txt, and we have the binary files also. Now let us compare both the types of files. Text files store information in the ASCII or the Unicode characters. ASCII or the Unicode characters, these have particular value based upon your default program in the computer. Then we have the binary files. It store information in the same format in which the information is held in the memory. In the binary files, the information is in the form of 0 and 1, the same way the information is there in the memory. Then in text file, each line is terminated by a special character known as the end of line character. And in binary file, there is no delimiter for a line. Binary file में आपका कोई end of line character नहीं होता है. Some internal translations take place when end of line character is read or written in text files, but in case of binary files, no translations occur in these types of files. Then text files are generally slower than binary files and binary files are little faster and easier to read. ये तो आपको अंडरस्टूड है कि बाइनरी फाइल्स में डेटा सेम टाइप का स्टोर होता है, इसीलिए आप इजीली इनको रीड और राइट कर सकते हैं एंड दे आर फास्टर टू एक्सेस. और टेक्स्ट फाइल्स पहले आप ही कन्वर्ट होंगी मशीन फॉर्म में, दैट इज इन द बिट्स एंड बाइट्स, एंड देन इट कैन बी एक्सेस्ड. दैट इज वाई दे आर लिटिल स्लोअर देन द बाइनरी फाइल्स. बट टेक्स्ट फाइल्स को आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं एंड बाइनरी फाइल्स में ये होता है कि दे कैन नॉट बी रेड डायरेक्टली, बट दे आर द बेस्ट वे टू स्टोर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फाइल मोड्स. अब जो हमारी फाइल्स होती हैं जिसमें हम वर्क करते हैं उसके कुछ मोड्स होते हैं. मोड्स का मतलब आप किस तरह से फाइल के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं. आप उसमें रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो. डिफरेंट मोड्स आर देयर. और ये मोड्स जब आप यूज़ करते हैं, कोई भी फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होती है. तो रीड मोड का मतलब होता है कि आप उस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसके लिए आपकी फाइल आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट होनी चाहिए. अगर आपके कंप्यूटर में वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है सो इट विल शो एन इनपुट आउटपुट एरर. लेट अस सी द फाइल मोड्स फर्स्ट. फर्स्ट इज द आर मोड. आर स्टैंड्स फॉर द रीड मोड. एज टोल्ड, इट opens the file for reading. For this, it is compulsory that file should be there in your computer. If the file is not there and you try to open that file, it will show you an input output error. W, it is used for writing only. It opens the file for writing and overwrites the file if the file exists. अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो आपका ओवरराइट हो जाएगा और जो आप नया डेटा देंगे वो ऐड हो जाएगा. लेकिन मान लीजिए आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो पहले फाइल को क्रिएट करेगा और फिर बाद में आपका डेटा इंसर्ट करेगा. देन आपका है R प्लस W प्लस. इससे पहले हम A को देखते हैं. A का मतलब होता है अपेंड. Opens for appending at the end of the file without truncating. Truncating means making changes. Creates a new file if it does not exist. Append का काम और जो W आपका मोड है writing, इसका काम दोनों का सेम होता है. दोनों में डिफरेंस ये होता है कि राइट में अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट करेगा. अपेंड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन राइट के अंदर अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है तो आपका प्रीवियस डेटा क्या होता है, सारा इरेज हो जाता है. लेकिन अपेंड के अंदर क्या होता है, आपका प्रीवियस डेटा भी रहता है और जो आप न्यू डेटा डालते हो दैट विल ऑल्सो बी देयर. नाउ इज R plus and W plus. R plus, it opens the file for both reading and writing. बट इट कैन नॉट ट्रंकेट अ फाइल. आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते.
एंड W+ इज ऑल्सो फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, इट कैन मेक चेंजेस इन द फाइल, यानी कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, प्रीवियस डेटा विल बी रिप्लेस्ड। क्लियर दिस थिंग? नेक्स्ट वी हैव इज ओपनिंग फाइल्स। अब बेसिकली एक फाइल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, देन फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज द ओपन फंक्शन। द सिंटेक्स इज फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम, या फिर फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू ओपन और ओपन के पैरेंथेसिस में फाइल नेम और उसका मोड। अगर आप मोड स्पेसिफाई नहीं करते हो तो एज टोल्ड वो किस मोड में आपकी ओपन होगी, राइट मोड में, सॉरी रीड मोड में। आपका एग्जांपल है F1 इक्वल्स टू ओपन xyz.txt। तो ये जो आपका F1 है इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलर या फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन आपके फंक्शन का नेम है, xyz.txt ये आपकी फाइल का नेम है। इसी फाइल को हमने यहाँ पे क्या किया, R मोड लगा दिया, यानी कि इस फाइल को अब हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी, दे डू द सेम वर्क, दैट इज दे ओपन द फाइल xyz.txt इन द रीड मोड, जो कि आपका डिफॉल्ट मोड होता है, एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट नेमली F1। ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट है F1। जब आपने ओपन फंक्शन से इस फाइल को ओपन किया तो ये फाइल आपके फाइल ऑब्जेक्ट से लिंक हो गई। ठीक है, तो ये मेनली लिंकिंग का काम हो रहा है। अब पाथ जो देना होता है, दो तरह के आपके पाथ्स होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है आपका रिलेटिव पाथ। पाइथन में हम दो तरीके से पाथ दे सकते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका, जैसे यहाँ पे हमने लिखा F2 इक्वल्स टू ओपन D ड्राइव मेन pqr.txt w। अब ये F2 क्या है, इसको हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन आपका फंक्शन का नेम है, और ये जो आप पाथ देख रहे हो ये D ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है। D ड्राइव में एक मेन नाम का फोल्डर है और मेन नाम के फोल्डर में आपकी एक फाइल है pqr.txt, और इसका मोड हमने क्या दिया, W, यानी कि हम इसके अंदर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये D ड्राइव से लेके pqr.txt जो आपका पाथ है वो एब्सोल्यूट पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ होता है द पाथ विच इज फ्रॉम द पेरेंट डायरेक्टरी। तो बेसिकली pqr.txt की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, D ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज pqr.txt मेन के अंदर है, तो यहाँ तक आपका ये क्या माना जाएगा, रिलेटिव पाथ। ठीक है, W आपका क्या हो गया, मोड हो गया। तो एब्सोल्यूट पाथ विच इज देयर रिलेटेड टू योर पेरेंट डायरेक्टरी, एंड जो आपका रिलेटिव पाथ होता है विच इज द वन दैट इज दे आर रिलेटेड टू द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने लिखा D देन मेन देन pqr.txt, तो यहाँ पे हम डबल स्लैशेस का यूज़ कर रहे हैं। तो डबल स्लैशेस का जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपका फर्स्ट मेथड होता है टू गिव द पाथ इन द फाइल नेम। सो ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेगी, इट विल ओपन द फाइल pqr.txt इन द राइट मोड एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट नेमली F2, और इसको किससे अटैच करेगी, जो फाइल का ऑब्जेक्ट है F2 उसके साथ। अब फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल हमने पढ़ा, ये F2 हमने पढ़ा कि ये फाइल ऑब्जेक्ट है, हम इसको फाइल हैंडल भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इट सर्व्स एज अ लिंक टू द फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है ये उससे लिंक कर रहा है। तो बेसिकली ये लिंक का काम करता है, एंड इट इज़ यूज टू रीड और राइट द डेटा टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। लिंक करके आप इसकी हेल्प से ही रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। And all the functions performed on the data files are performed through file objects। जितने भी functions आप फाइल के ऊपर perform करेंगे डेटा फाइल्स के ऊपर, सारे आपके फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही perform हो पाएंगे। That is the importance of an file object। Now next method to give path in file name is using the raw string। ऊपर आपने देखा था जहां हमने पाथ दिया, यहाँ पे हमने डबल स्लैशेस लगाए थे और यहाँ पे हमने सिंगल स्लैश लगाए, बाकी सारा आपका सेम है, और यहाँ हमने R एक पुट कर दिया। अभी R का क्या मतलब है, R स्टैंड्स फॉर रॉ स्ट्रिंग। तो रॉ स्ट्रिंग का मतलब है कि जो भी आपके इसमें एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे अभी हम अगर लिखें A/N और फिर लिख दें B, तो पहले A आएगा और नेक्स्ट लाइन में आपका B आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके आगे R लगा देते हो तो वो उन्हें नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा, वो होता है आपका रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो तरीके से हम पाथ दे सकते हैं फाइल नेम में, या तो आप डबल स्लैशेस लगा सकते हो और वहाँ आपको R लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप डबल स्लैशेस नहीं लगाते तो आप सिंगल स्लैश लगा सकते हैं और यहाँ पे आप R लिख सकते हो।
तो इससे आपका जो पाथ है इस रॉ स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया जाता है, जहाँ पे ऑल द कैरेक्टर्स आर टेकन एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। और फिर आपका होता है क्लोजिंग द फाइल्स। जब ओपन किया हमने फाइल को, ओपन फंक्शन से किया, तो जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो लिंक कर रहा है फाइल के साथ, और जो आपकी क्लोजिंग फाइल्स ऑपरेशन है वो क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट का फाइल के साथ जो लिंक बना हुआ है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। और जब ब्रेक हो जाएगा एक बार लिंक, देन यू कैन नॉट परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन दैट फाइल। कैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल हैंडल डॉट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा है सपोज फाइल हैंडल डॉट क्लोज, मतलब फाइल हैंडल का मतलब हुआ ये जैसे आपका F2। तो जैसे यहाँ पे है, मान लो PQR मैंने लिया हुआ है तो PQR डॉट क्लोज। यहाँ पे मान लो मैंने F2 लिया हुआ है तो हम यहाँ पे देंगे F2 डॉट क्लोज। क्लियर दिस थिंग। तो ये आपको समझ में आ गया। मोड्स हो गए और 2 मेथड्स हो गए आपके ओपन करने के, और आपका हो गया एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। अब आपका है रीडिंग अ फाइल। एक फाइल को हम कैसे रीड करते हैं, इसके लिए बेसिकली आपके 3 मेथड्स होते हैं, रीड मेथड, रीड लाइन मेथड एंड रीड लाइंस मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा है रीड मेथड। हमने लिखा F1 इक्वल्स टू ओपन डी पोएम डॉट txt कॉमा R। डी ड्राइव में आपकी एक फाइल है पोएम डॉट txt, किस मोड में हमने ओपन किया, रीड मोड में। हमने बोला A इक्वल्स टू F1 डॉट रीड। अब आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने एक ओपन फंक्शन का यूज़ किया है और एक यहाँ पे हमने रीड फंक्शन का यूज़ किया है, और यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट F1 का यूज़ कर रहे हैं जो कि इसको लिंक कर रहा है हमारी फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला प्रिंट A। कौन से मोड में ओपन है हमारी फाइल, रीड मोड में। तो इस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे कंटेंट्स को प्रिंट करके दिखा देगा। यहाँ जो आपके रीड फंक्शन है इसके पैरेंथेसिस में हम कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, बट इफ़ यू हैव नॉट गिवन एनी वैल्यू देन इट विल रीड द एंटायर फाइल, एंड इफ़ यू गिव एनी वैल्यू लाइक 10 यू हैव गिवन, देन इट विल रीड 10 बाइट्स ओनली फ्रॉम दिस फाइल। समझ में आई बात। दोबारा समझिए कि जब भी आप रीड फंक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, फ्री छोड़ते हैं, तो उस केस में आपकी फाइल के सारे कंटेंट्स रीड होते हैं, और अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं तो उस केस में आपकी फाइल के उतने बाइट्स रीड किए जाते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पे हमने ओपन फंक्शन और रीड फंक्शन के लिए सेपरेट स्टेटमेंट्स दिए हैं। हम चाहें तो इसे एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ओपन पोएम डॉट txt R डॉट रीड और ब्रैकेट में हमने दे दिया 10। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, वो ओपन करेगा इस फाइल को रीड मोड में, और उसके बाद उस फाइल से 10 बाइट्स को रीड करेगा। क्लियर दिस थिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारी डी ड्राइव है। डी ड्राइव में यहाँ पे एक हमारी नोटपैड की फाइल है क्लास, ठीक है। अब इस फाइल को जब हमने ओपन किया तो ये फाइल के अंदर हमारा ये डेटा है, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड मेकिंग गुड यूज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब हम जब पाइथन में जाते हैं तो हमने एक फाइल यहाँ पे बनाई और हमने लिखा F2 इक्वल्स टू ओपन डी ड्राइव क्लास डॉट txt। समझ में आ रही है ये चीज़। F2 क्या है, आपका फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और जो मेरी फाइल है क्लास डॉट txt वो डी ड्राइव के अंदर है, तो आई हैव गिवन दिस पाथ हेयर। यहाँ पे आई हैव नॉट गिवन एनी मोड, तो बाय डिफॉल्ट वो किस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में। इट मीन्स आप फाइल को रीड कर सकते हैं, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद आई हैव टेकन अनदर वेरिएबल a, आई से a इक्वल्स टू F2 डॉट रीड। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले हमारे ओपन फंक्शन की हेल्प से इस फाइल को ओपन करेगा और इसको रीड करेगा, एंड देन प्रिंट a। तो यहाँ पे मैंने क्या कोई इंटीजर वैल्यू दी, नहीं दी। तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट हेयर। जितना भी हमने कैरेक्टर्स लिखे थे, जो भी हमने हमारे फाइल में जितना भी था, हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड मेकिंग गुड यूज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सारा का सारा आपका रीड हो गया और वो आपके पास आ गया। अब मान लीजिए मुझे सारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कुछ ही बाइट्स चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी तक चाहिए। तो हम इसके अंदर सपोज 10 बाइट्स लेके चलते हैं। यहाँ हमने दे दिया 10, और अब अगर हम इसे रन करेंगे तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, हेलो स्टड।
समझ में आ गई इतनी बात? तो इसमें ये डिफरेंस है कि जब आप कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो सारी आपकी फाइल रीड हो जाएगी और जितनी बाइट्स आप देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वो रीड हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया b और हमने लिखा f2 डॉट रीड 30 एंड देन हमने दिया प्रिंट b। तो उस केस में आपका आउटपुट इस तरह से आया। तो उस केस में उसने क्या किया कि यहाँ पे आपने दिया रीड 30, तो 30 कैरेक्टर्स 30 बाइट्स उसके बाद के उसने लिए। तो ये तो आपका पहले का था। देन ही हैज टेकन ENTS कॉमा और यहाँ से लेके जितनी भी आपकी 30 बाइट्स बनती हैं वो विल बी शोन इन द आउटपुट। क्लियर दिस थिंग? आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे हमने ये रीड 10 भी लिया और 30 भी लिया। तो पहले तो वो 10 रीड कर रहा है तो सेम टू सेम आपका आउटपुट वहाँ से आया। उसके बाद वो नेक्स्ट 30 रीड कर रहा है, मतलब 11 से लेके 11 प्लस 30 कितना हो गया आपका 41। तो 11 से लेके आपका जहाँ तक भी 30 बाइट्स टोटल हो जाएंगी वहाँ से वो रीड करेगा। जैसे 11 से 20 तक आपकी 10 हुई, फिर 21 से 30 आपकी 10 हुई और फिर 31 से 40 आपकी 10 हुई। तो 40 जहाँ पे काउंटिंग रहेगी वहाँ तक वो उसको रीड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका होता है रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन विल रीड द फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन एंड स्टोर इट एज अ स्ट्रिंग। जब हम रीड फंक्शन का यूज कर रहे थे इट वॉज रीडिंग द फाइल इन बाइट्स एंड रीड लाइन फंक्शन विल रीड द फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन। इस तरह से आपको फाइल को ओपन करना है। F1 इक्वल्स टू ओपन, जैसे आपने पहले ओपन किया था, और रीड फंक्शन की प्लेस पे आपको सिर्फ रीड लाइन फंक्शन लगाना है, बाकी सारा आपका कंटेंट सेम रहेगा। और आपका रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी पूरी फाइल को रीड करेगा इन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग्स की लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट देगा। इसमें भी आपका सेम रहेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे S आएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन फाइल को ओपन किया, जिस तरह से आपने रीड फंक्शन दिया, रीड लाइन फंक्शन दिया, उसी तरह से इसमें देंगे और यहाँ पे आप कर देंगे F1 डॉट रीड लाइन्स, प्रिंट करेंगे एंड देन फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लियर? नाउ अगेन वी हैव द सेम फाइल और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ द रीड फंक्शन आई हैव टेकन द रीड लाइन फंक्शन। तो ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है आपका। तो इस केस में जो आपका आउटपुट आया, इसने लिया हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट लाइन आपकी यही थी, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन रीड करानी है तो आपको दोबारा से रीड लाइन फंक्शन देना पड़ेगा। तो रीड लाइन फंक्शन आपका क्या कर रहा है, इट इज रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल लाइन बाय लाइन। नाउ आई हैव टेकन अनदर रीड लाइन फंक्शन हियर और हमने यहाँ पे दोबारा से इसको प्रिंट कराया। तो अब आप देखो कि जब हमने दोबारा प्रिंट कराया तो दो बार रीड लाइन है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा एंड देन इट विल रीड द सेकंड लाइन एंड देयर विल बी ब्लैंक स्पेस, लिटिल ब्लैंक स्पेस बिटवीन द लाइन्स। इस तरह से आपको रीड लाइन फंक्शन को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रीड लाइन्स फंक्शन। नाउ सी द आउटपुट ऑफ रीड लाइन्स फंक्शन। यहाँ पे हमने रीड लाइन के प्लेस पे कर दिया रीड लाइन्स और हमने क्या पढ़ा था, रीड लाइन्स फंक्शन जो है वो आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देता है। तो ये आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स आर देयर और स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हेलो स्टूडेंट्स एक स्ट्रिंग बन गई, फिर होप यू ऑल आर वेल एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई, देन उसके बाद था एंड मेकिंग गुड यूज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, थर्ड स्ट्रिंग हो गई, और ये स्लैश एन आपका न्यू लाइन के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीड लाइन्स फंक्शन। तीनों चीजें क्लियर हो गई। रीड फंक्शन आपके कंटेंट को रीड कर रहा है, पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू नहीं दे रहे तो पूरी फाइल को रीड करेगा, वैल्यू देते हैं तो उतने बाइट्स को रीड करेगा। रीड लाइन फंक्शन लाइन बाय लाइन आपकी फाइल को रीड करेगा, रीड लाइन फंक्शन। एंड रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ strings. Clear this thing? Now we have is the assignment part. The first question says what is the difference between W and A modes? This we have discussed. W is used for writing in a file and A is used for appending. In this previous data is lost, but in this previous data also remains. Second is what is the significance of file object, that I have told you. Third is how is file open function different from file close function, that also it is there in the video, you can write down. Fourth question is write the statement to open a binary file see my files text1.txt in read and write mode by specifying the file path in two different formats. दो तरह के फाइल पाथ्स हमने इसमें अभी सीखे हैं, एक आपके जो डबल स्लैश मेथड से हो गया और एक आपका रॉ स्ट्रिंग से हो गया। तो इसको आप रीड और राइट मोड में ओपन करके वन स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन फॉर ईच।
Question number 5 says when a file is opened for output, what happens when the mentioned file does not exist and the mentioned file exists? ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर आप उसे ओपन कर रहे हैं एंड अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में इट विल शो यू एन इनपुट आउटपुट एरर, और अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो इट विल रीड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइल एंड गिव यू द डिज़ायर्ड output. Question number 6 is what role is played by the file modes in the file operations, and describe the various file modes, constants and meanings. This we have discussed in the video that you have to write down. Question number 7 is what are the advantages of saving data in text form and binary form. Two parts यहाँ पे आप लिख लेना, text form and binary form. किसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, कौन रीड करने में ईजी होता है और कौन सी फाइल आपकी एक्सेस करने में फास्टर होती है. क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हेन डू यू थिंक टेक्स्ट फाइल्स शुड बी प्रेफर्ड ओवर बाइनरी फाइल्स. तो इस केस में आपको ये बताना है कि टेक्स्ट फाइल के एडवांटेजेस क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइनरी फाइल. एज हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट फाइल को रीड करना इज़ मच ईजियर देन द बाइनरी फाइल्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. आपको पाइथन की स्टेटमेंट लिखनी है इसमें. टू ओपन अ फाइल book.txt इन द रीड मोड. ओपन करने के लिए यू हैव टू यूज़ द ओपन फंक्शन. फाइल का नाम आपको दिया हुआ है. रीड मोड के लिए आप आर यूज़ करेंगे. सिमिलरली टू ओपन अ फाइल book.txt इन द राइट मोड. ये आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है. देन वी हैव 5 fill in the blanks and their answers need to be given in the comments of the video. The first question says the default file open mode is dash mode. So this we have discussed.